Next question, 10th one. If x plus iy is equal to root of a plus ib divided by c plus id, then x square plus y square whole square will be same pattern. X minus iy is equal to a minus ib upon c minus id. Multiplication of the two, it is x square plus y square is equal to under root of a plus ib into a minus ib, it is a square plus b square divided by c plus id, c minus id, c square plus d square. आपको होल स्क्वायर चाहिए. व्हाट इज इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज a square plus b square upon c square plus d square is the answer. A is correct answer. Question number 11th भी same pattern पर. If minus 7 minus 24i whole under root or power half that is equal to x minus iy, then what is x square plus y square? Just take the conjugate of this. It is under root of minus 7 plus 24i. Multiplication x square plus y square is equal to whole under root this into this minus 7 whole square plus 24 whole square. Okay, ये आंसर आएगा. What is it? It is under root of 7 square 49 plus 24 square 576. 625 under root कितना आया? 25. Beta is correct answer. Now the questions of type 3 modulus. The modulus of the complex number 2 plus 3i upon 3 plus 2i means you have to find out modulus of this. One property we are using here, z1 upon z2 modulus can be written as modulus of z1 divided by modulus of z2. वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट यू शुड सिंप्लीफाई इट. ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई करो पहले. इट इज अ लॉन्ग मेथड. 3 plus 2i multiplied by conjugate of denominator and so on, सिंप्लीफिकेशन करके. और दूसरा रास्ता शॉर्टकट ये आइडेंटिटी है. वी कैन यूज मॉडुलस ऑफ 2 plus 3i divided by modulus of 3 plus 2i, 2 plus 3i, it is equal to 2 square plus 3 square, it is equal to 3 square plus 2 square. ये cancel. What is the answer? Answer is 1. Question number 2. Modulus of 1 plus i into 2 plus i upon 3 plus i. Second property, what it is? Modulus of z1 into z2 can be written as modulus of z1 into modulus of z2. This whole modulus can be written as modulus of 1 plus i, modulus of 2 plus i, modulus of 3 plus i. Alright? What is this? इसका modulus कितना होगा? Root of 1 square plus 1 square into root of 2 square plus 1 square, root of 3 square plus 1 square, root 2, 4 plus 1, 5, 9 plus 1, 10. That can be written as 5 twos are root 10 upon root 10. Cancel. Answer is 1. Next is questions of type 4, square root. Important questions. First is root of I is equal to. मैंने आपको बताया था any complex number is there x plus iy, इसका square root. If it is a plus ib, then what is a? It is under root of modulus of z plus x by 2. What is b? Under root of modulus of z minus x by 2. Is it okay? What is the value of, for this complex number you should write it in this way, 0 plus i, 0 plus 1i, ऐसा लिखिए.
इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट इज 1. व्हाट इज a? इट इज अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z. इसका मॉडुलस कितना निकलेगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस x बाय 2. इट इज प्लस माइनस 1 by 2. And what is b here? That is equal to 1 minus 0 by 2. What is it? Plus minus 1 by 2. That means it is actually plus minus 1 upon root 2. इसको भी ऐसे ही लिखिए, plus minus 1 upon root 2. What is your answer? Answer is a plus ib. It is plus minus 1 upon root 2 plus minus 1 upon root 2 I. You can take common 1 by root 2 common लेंगे, 1 plus I by root 2. This is the answer. Another method to find out the square root. Emergency condition में आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन का स्क्वायर करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए भाई, अंडर रूट ऑफ दिस इज दिस, स्क्वायर ऑफ दिस शुड बी क्वेश्चन. अब जैसे ये आया, इसका स्क्वायर करना, व्हाट इज प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस आई 1 बाय रूट 2, दिस स्क्वायर. इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाय 2 आई स्क्वायर and plus 2 times a into b, it is 1 by root 2 I. Okay, this is I square is minus 1, this is cancel out. 2 times root 2 1 by 2 and what is it? I. cancel out. क्या बचा? क्वेश्चन आ गया. इसका स्क्वायर करेंगे तो I आएगा, I का रूट लेंगे तो ये आएगा. सो दिस इज अल्टरनेट मेथड, स्टेपनी मेथड आप इसका यूज कर सकते हैं. स्क्वायरिंग द ऑप्शंस यू विल गेट द क्वेश्चन. क्वेश्चंस ऑफ टाइप 5 जनरल अर्थमेटिक्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3i, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? क्या प्रिंसिपल यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? ऑलवेज इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस 2 अननोन्स विल बी गिवन, x and y, a and b, like this. And because real part should be equated with real part, एक इक्वेशन वहां से मिलेगी. imaginary part should be equated with imaginary part, एक इक्वेशन वहां से बनेगी. With the help of 2 equations you can cancel out one and simply general simultaneously जो इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए? रियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड. आपको यहां से रियल पार्ट सेपरेट करना चाहिए. व्हाट इज रियल पार्ट? x प्लस वाई. और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना चाहिए. इट इज माइनस एक्स प्लस वाई. एंड बिकॉज इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3i, so real part should be equal to real part, imaginary part should be equal to imaginary part. बस हर क्वेश्चन में यही प्रिंसिपल है. क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? डायरेक्टली इक्वेटेड है, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, कैंसिल आउट. 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 उधर गया, x इज इक्वल टू व्हाट इट इज 2. ये आंसर आ गया माइनस. इसको एक साथ लिख दीजिए, 2 कॉमा माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इन सब में 6, सब में यही करना है. 7 also you have to do the same thing. Next question is question number 8. If summation k equal to 0 to 100 I to the power k is equal to x plus iy, then the values of x and y are. This is what is the meaning of summation? I to the power k should be started from 0. तो first value क्या आएगी? 0 डालिए. I to the power 0, anything power 0 is 1. Summation means plus. Second value डालिए 1, it is I. Second next value is 2. Third value 3, फिर 4,
फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, कब तक? i टू द पावर, ये आपको टोटल करना है और ये किसके इक्वल है? x प्लस आई वाई के इक्वल है। मेरे को अच्छी तरह पता है i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 कितना होता है? 0 होता है। एक बार फिर से देख लें, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i और i टू द पावर 4 इज 1, i माइनस आई -1 प्लस 1 कैंसिल्ड आउट 0। फिर i5 जब आएगा तो इसमें से i टू द पावर 4 शुड बी सेपरेटेड आउट एंड इट शुड बी रिटन एज i टू द पावर 4 into i टू द पावर 4 is 1, it is i, next term will be i square, next term will be i cube, next term will be i to the power 4 and so on, again becomes 0, 1 plus 0 plus 0 plus 0, 4 के सेट बनेंगे, है ना? 4 के 25 तक आते आते 100 तक आते आते 25 सेट्स बन जाएंगे और हर एक का आंसर कितना होगा? 0 एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस आई वाई। इसको लिखिए 1 प्लस 0i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। व्हाट इज x? 1. व्हाट इज y? 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. If 1 plus I upon 1 minus I, what is 1 plus I upon 1 minus I? In shortcut, what it is written as? I to the, it is given as 1. What is the least integral value of m? 1, 2, 3, 4, 5, 6. किस समय कम से कम आप वैल्यू डालो m की तो 1 मिलेगा? 4. हमको मालूम है ना, i to the power 4 is 1. So what is m? m is 4. Beta is correct answer. 11th question number is 1 plus I square plus I4 plus I6 plus up to I to the power 2n is equal to what? कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को? दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट टर्म इज 1, मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इंटू इट, नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इंटू नेक्स्ट टर्म आई स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस तरह से करते करते आई टू द पावर 2n तक जाना है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टोटल ये टर्म्स आ रहे हैं, है ना? 2, 4, 6 एंड अगर आप यहां देखेंगे 1 को छोड़ दें आप, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज थर्ड टर्म, इट इज 6, है ना? इस तरह से ये टर्म चल रहे हैं, 2n के पावर में चल रहे हैं. पुट 1, 2, 2 2 जा 4, थर्ड टर्म 3 2 जा 6. ऑलराइट, इस तरह से टर्म्स चल रहे हैं. सो इसका सम आप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज a, मल्टीप्लाई r into it, ar, मल्टीप्लाई r into it, मल्टीप्लाई r into it, इस तरह से सीरीज चलती है. इफ n टर्म्स आर देयर, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स? नोट कर लीजिए, a r to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय r minus 1. ये इसके सम का फॉर्मूला है, ठीक है? अभी इसको आप क्या करो, 1 को सेपरेट कर लो अभी फिलहाल. व्हाट इज a हियर? फर्स्ट टर्म इज i स्क्वायर. r इज आल्सो i स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते जा रहे हो. इट इज i स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. It is 1 plus I square is minus 1, so it is minus is transferred here, I to the power 2n minus 1 upon I square is minus 1 and minus 1, it is minus 2. ये आपका सम आएगा. In case if I take n is equal to 1, नेचुरल नंबर्स है ना, तो कितना होगा? I square is minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 by 2. What is the answer? Answer will be 0. If I take n is equal to 2, 2 2s are 4, I to the power 4, I to the power 4 is 1, 1 minus 1 is 0, answer will be 1. If I take 3, 3 2s are 6, what is I to the power 6? I to the power 6 कितना होगा? I to the power 4 separate करके I square is minus 1, it is minus 1, answer will be 0. If I take n is equal to 4, 2s are 8, it is 1, 1 minus 1, answer is 1. So आंसर आप देखेंगे 0 1 0 1 0 1 आते चले जाएंगे as per the value of n, right?
नेक्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अल्टरनेट मेथड इज व्हाट? लास्ट टर्म देखिए सीरीज का क्या है, i to the power 2n. n is definitely is a natural number. If you put n is equal to 1, सीरीज स्टार्ट हुई थी 1 से, 1 प्लस, if you put 1 into 2 is 2. If n is equal to 1 is there are two terms in the series, 1 plus I square. What is I square? Minus 1, 1 minus 1 is 0. If you put n is equal to 2, 2 2s are 4, I to the power 4 तक सीरीज जाएगी. If you put n is equal to 2, the series will take the form of this 1 plus I square plus I to the power 4, 2 2s are 4. What is it? Minus 1 cancel out, I to the power 4 is 1. If I put n is equal to 3, 3 2s are 6, सीरीज यहां तक आएगी 1 plus I square plus I to the power 4 I to the power 6. कितना होगा? 1 minus 1 plus 1, I to the power 6 is I to the power 4 into I square. It is minus 1. So 1 minus 1, 1 minus 1 cancel, answer will be 0. Check करेंगे 0 1 0 1 0 1 आता जाएगा. So for this question correct answer is delta. On similar pattern, question number 12 and 13 are there. 14th question number is 1 minus I to the power n is equal to 2 to the power n. Then n is equal to, in objective it is so easy, we can check by putting the options. If I put answer A, it is 1 minus I to the power 1 is 2 to the power 1. No, बीटा इज, क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ है कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड साइड इट इज अ रियल नंबर. सो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट तभी कर सकते हैं जब पावर कितनी हो? 0 हो. एनीथिंग पावर 0 इज 1. सो करेक्ट आंसर इज बीटा. 15th क्वेश्चन नंबर इज इंपॉर्टेंट. If 2z1 upon 3z2 is purely imaginary number, then modulus of z1 minus z2 upon z1 plus z2 is equal to what? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2z1 upon 3z2 is purely imaginary number. You should take it as iy. Then what is z1 upon z2 from here? It is 3y I upon 2. 3y by 2 I. In this, if I take z2 common, it will be z1 upon z2 minus 1 upon, if you take z2 common, it will be z1 upon z2 plus 1. This is cancel out. It is the modulus of z1 by z2. z1 by z2 is what? 3y by 2i minus 1 upon 3 by 2yi plus 1. Can be written as, if I take minus common from the numerator, it will be what? It will be 1 minus 3 by 2yi, and denominator should be written as 1 plus 3 by 2yi. This modulus with negative sign. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या है? उसका कॉन्जुगेट. सो व्हाट इज इट? इट इज माइनस ऑफ 1. माइनस का मॉडुलस कितना? 1. सो इंडिविजुअल ऊपर का जितना मॉडुलस आएगा उतना नीचे का मॉडुलस आएगा. इट इज z1 by z2 मॉडुलस. z1 and z1 z and z modulus, z and z bar modulus, they are equal. What is this? Cancel out. Cancel out. It is 1. और नहीं तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, ये यही से आप इसका मॉडुलस निकालते तो कितना आता? न्यूमरेटर का मॉडुलस कितना आता? 3 by 2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. डिनोमिनेटर मॉडुलस कितना आता? 3 by 2y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब दोनों फिर से सेम थे, ये कैंसिल हो जाता यहीं पर. व्हाट इज इट? आंसर इज 1. डायरेक्टली यू कैन राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16th. If z is a complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. Purely imaginary means जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हमने किया है, it is equal to iy, right? Then modulus of z is equal to what? This we have to find out.
मैं यहां से क्या करूंगा, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज z. सो z माइनस 1 इज इक्वल टू z इंटू आई वाई प्लस आई वाई. ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. z minus z I y is equal to minus 1 is transferred to the right hand side, 1 plus I y. Z common, 1 minus I y is equal to 1 plus I y. What is complex number? Z is 1 plus I y upon 1 minus I y. What is the modulus of z? This is equal to modulus of 1 plus I y divided by modulus of 1 minus I y. They are conjugate to each other. Definitely their modulus will be equal. मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं और नहीं तो ऐसे कर सकता हूं. अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए. 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर. कैंसिल आउट. व्हाट इज द आंसर? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1. Next is 17th. If a square plus b square is equal to 1, then 1 plus b plus ia upon 1 plus b minus ia is equal to a square plus b square. देख करके आपको क्या लगता है ये क्या है? Actually if I take a complex number z is equal to a plus ib, or if a complex number is b plus ia, then what is the modulus of z? What is it? It is under root of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता ना. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता, इसका मॉडुलस कितना होता? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आप करते तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन से आप बोल सकते हैं डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डेफिनेटली इट इज गिवन एज 1. ये मैंने अपनी तरफ से डिराइव किया इस कॉन्सेप्ट को, दैट इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज गिवन एज 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मॉडुलस ऑफ z शुड बी टेकन एज 1. दिस इज 1, 1 स्क्वायर इज 1. ये क्लियर हो गया? ओके. z स्क्वायर है, z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? z इंटू z बार. ये क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ही तो होता है. z इंटू z बार. What is this? z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो x प्लस आई वाई. एंड व्हाट इज z बार? z बार इज x माइनस आई वाई. इफ यू मल्टीप्लाई इट, a प्लस b, a माइनस b, मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इज इट क्लियर और नॉट? सो z इंटू z बार कहने का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन. ये आपको क्या दिया जा रहा है? इट इज से गिवन एज 1. इससे मैंने डिराइव किया, इसकी हेल्प से ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया. z इंटू z बार इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 1. Now in this statement z into z bar is equal to 1, मैं अपनी तरफ से एक z लेफ्ट हैंड साइड और एक z राइट हैंड साइड ऐड करता हूं. राइट? z into z bar is equal to 1 plus z on both the side. I can take z common from here. It is 1 plus z bar is equal to what? 1 plus z. So what is z actually? Z is 1 plus z upon 1 plus z bar. ये स्टेटमेंट आपके पास में आ गया फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखिए यहां पे मेरे को दिख रहा है b प्लस आई ए. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका कॉन्जुगेट कितना है? b माइनस आई ए. इन केस अब मैं यहां पे इफ आई टेक z इज इक्वल टू b प्लस आई ए ले लूं. If I take b plus ia, so this statement will take the form 1 plus z. Z is b plus ia divided by, it is 1 plus z bar. Z bar is b minus ia. और ये क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा z. Z means b plus ia आएगा. So what is your answer? Answer is b plus ia. If you see the options are C answer is correct, B plus IA. Shortcut. How to do this question in short?
देखिए कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इफ आई टेक ए इज इक्वल टू 1, इफ आई टेक बी इज इक्वल टू 0, क्या मैं दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं? यस, आई कैन सेटिस्फाई. इट इज 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 1. ओके, सो हियर इफ यू पुट इट विल बी a प्लस b इज 0. मैंने इसलिए 0 लिया क्योंकि इसमें भी प्लस b था और इसमें भी प्लस b था. a में डिफरेंस है, इट इज प्लस आई एंड इट इज माइनस आई ए, इसलिए मैंने a को 1 लिया, b को 0 ले लिया. इट इज व्हाट न्यूमरेटर विल बी 1 प्लस आई, a इज टेकन एज 1 अपॉन इट इज 1 माइनस आई. आपको मालूम है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई कितना होता है? I. If the same condition is put in options, answer should be I. So answer A और B, तो 1 और 2 है, discard कर दीजिए. C option is given as what? C is B plus IA. What is B? 0. I. A is 1. Answer is I. It may possible. Delta answer A plus IB. 1 plus I into 0. It is 1. So this is not possible. Correct answer is C is correct answer. Next concept is geometrical representation of complex number. It is also called standard form or polar form of complex number. शॉर्टकट दिया हुआ है इसमें, टेक द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में z इज इक्वल टू 2 पार्ट्स हैं. कौन कौन से? x जिसको आप बोलते हो रियल पार्ट एंड y जिसको आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट. ओके, 2 पार्ट से मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, इमेजिनरी प्लस रियल मिला के. इन जनरल हम ये देखते हैं कि इफ यू मेक अ ड्राइंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, है ना. जैसे आपसे किसी ने पूछा कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस जवाहरलाल नेहरू स्कूल, तो आप क्या करोगे? आपने बताया कि यू आर हियर, यहां से जाइए, फिर टर्न ले लीजिए, फिर एक ऐसा आएगा, ये आएगा, फिर ये रोड सीधा जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ऐसा आएगा, है ना. फिर यू टेक द टर्न, हियर इज द जवाहरलाल नेहरू स्कूल, पर अभी बंद है क्योंकि छुट्टी हो चुकी है. लाइक दिस. तो क्या है? डायग्राम बना करके इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, उसमें आप देखिए ग्राफ का यूज किया जाता है कि इस टाइम पे हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इस टाइम पे इतना प्रॉफिट हुआ. इट इज लाइक दिस. और दूर मत जाइए, क्रिकेट मैच में आप देखें, क्रिकेट मैच में ओवर्स होते हैं यहाँ पे 1, 5, 10, 15 लाइक दिस, और बताते हैं कि रन रेट जो है वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. फॉर वन टीम दिस इज द ग्राफ, फॉर सेकेंड टीम दिस इज द ग्राफ, है ना, बिल्कुल क्लोज. तो हमको क्लियर हो जाता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, या व्हाट इज द सिचुएशन. एकदम एक ही बार में पिक्चर क्लियर हो जाती है. If you make the analytical table, it is difficult, but graph से it is quite easy. So यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? Graphical representation कर रहे हैं किसका? Complex number का. If I take real part on x-axis, imaginary part of the complex number on y-axis, imaginary part on the, so इसको बोलते हैं real axis. This is called imaginary axis. Axis is not imaginary, but the name is imaginary part we are plotting on y-axis. That is called imaginary axis. This is called real axis. Any complex number z is equal to x plus iy. इसके 4 केस हो सकते हैं. x positive, y positive, x positive, y negative, x negative, y positive, x negative, y negative. है ना? x के और y के there may be x is positive, y is positive. कौन सा quadrant आएगा? x is positive, y is positive. It is lies in first quadrant. Then x is negative, y is positive. Y is positive. Which quadrant it is? Second quadrant. Then x is negative, y is negative. It is in third quadrant. And x is positive, y is negative. It is in फोर्थ क्वाड्रेंट. x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव लोकेशन यहां पे आएगी. तो आप 4 टाइप से इसके रिप्रेजेंटेशन को यहां पर प्लॉट कर सकते हो. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स रियल पार्ट?
3 units, 1 2 3. What is the magnitude of its imaginary part? 4 units. So it is 1 2 3 4. यहाँ पे प्लॉट किया मैंने. So यहाँ पे आप बता सकते हैं कि on graph paper this is the location of complex number. हमको देखने से पता चल जाएगा. This part is equivalent to x part real and this is imaginary. If you join it from the origin, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन होती क्या है, कितनी होगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्री स्टेट्स दैट दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. पर हमारे लिए ये एक चीज है, हमारे हिसाब से ये क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मॉडुलस, मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ. तो इफ z इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर देन द लाइन OZ इट इज रिप्रेजेंटिंग मॉडुलस ऑफ z. इसको अपन r से भी डिनोट कर सकते हैं. r इज कॉल्ड हियर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसको बोला जाएगा. राइट? अभी अगर मेरे पास में ये एंगल है, दिस एंगल इज से फॉर एग्जांपल थीटा. व्हाट इज tan थीटा हियर? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट. इस थीटा को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और इसको बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. R is same as this. This is called modulus or it is called magnitude of the complex number. Important. This is called standard form. अब आपके पास में complex number है z is equal to x plus iy. देखना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x प्लस आई वाई, एक्स वाई से जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिनोट करते हो, व्हाट इट इज कॉल्ड? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं आप इसको. ओके, इफ दिस इज थीटा, इस ट्रायंगल में देखना x अपॉन r, बोलिए क्या होगा? cos थीटा. गुड. व्हाट इज x? r cos थीटा. इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज y अपॉन r? sin theta. What is y? It is r sin theta. Complex number can be written as r cos theta plus I times r sin theta, or I can write z is equal to, complex number is r is taken common, cos theta plus I sin theta. Very important. When any complex number is written as z is equal to x plus iy, it is called Cartesian form of the complex number. If the same complex number is written in this form, z is equal to r cos theta plus I sin theta, this is called standard form of the complex number, or it is called पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. क्यों पोलर फॉर्म बोलेंगे? क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x, y दे सकते थे, और नहीं तो पोलर फॉर्म में आपको मालूम है ये बताते हैं अपन r, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की याद करिए, और ये एंगल बताते हैं अपन थीटा. सो r थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट. इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. Theta is called argument or amplitude of the complex number. R is called modulus of the complex number. Argand diagram. Reference to rectangular axes x and y, usually called the real and imaginary axes. A complex number z is equal to x plus iy can be represented by a point P whose coordinates are x, y. The plane xy is called Argand plane or complex plane or Gaussian plane. ये जो प्लेन आपने प्लॉट किया है x and y वाला, this plane is called Argand plane. This diagram is called Argand diagram. It is also called Gaussian plane or it is also called complex plane. इसको बोला जाएगा.
इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, थीटा आर्गुमेंट, एंड इसके फिर नोटेशंस दिए हुए हैं. r इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस ऑफ z sin theta and cos theta. X is r cos theta, y is r sin theta, and so on. Z is equal to r cos theta plus I sin theta is called standard form of complex number, right? Notice there, the amplitude of complex number 0 0 is not defined. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई 0 के फॉर्म में लिखा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वी कांट से, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में ये ओपन नहीं हो रहा है. 0 0 मींस ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, सो वी कैन नॉट डिफाइन इट्स आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड. It is to be noted that amplitude of a complex number is a many valued function, that is 2n pi plus theta, because one complete rotation के बाद this is x, this is y, this is real axis, this is imaginary axis. अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, this angle is theta, this is complex number, से इसका मॉडुलस इट इज z, r से डिनोट कर रहे हैं, ये थीटा हो तो भी, और एक रोटेशन कितने का, 2 पाई का, 2 पाई प्लस थीटा हो तब भी, या दो रोटेशन 2 टाइम्स 2 पाई प्लस थीटा तब भी, 3 टाइम्स 2 पाई प्लस थीटा हो तब भी, यू विल रीच एट द सेम पॉइंट, आप उसी जगह पहुंच जाएंगे. तो इट इज जनरल वैल्यू फंक्शन है ये क्या है, 2n पाई प्लस थीटा. Thousands of thousand values you can get by putting n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this, where n is the element of integers, the set of integers. The principal value of the amplitude is that value of theta which satisfies the inequality which lies between minus pi to plus pi. जो वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगी, माइनस पाई मतलब ये वाला एंगल और प्लस पाई मतलब ये वाला एंगल, उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं ना, प्रिंसिपल ब्रांच, नियर ओरिजिन, द ब्रांच विच सेटिस्फाइज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज. जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स की कंडीशन में माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक की जो वैल्यू होती थी, ये जो ब्रांच होती थी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच. डू यू रिमेंबर दिस? कॉस थीटा के कंडीशन में 0 to पाई, this branch is called principal branch in case of cos x, because this branch consists all the possible value of the function and it is also near origin. So यहां पे भी प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, माइनस पाई टू प्लस पाई. One condition is there, if modulus of any complex number, its conjugate, is equal to z2 bar and amplitude of complex number z1 plus amplitude of complex number z2, if it is equal to 0, then z1 and z2 they are conjugate of each other. एक और पॉइंट है, रिमेंबर, आर्गुमेंट ऑफ z इट इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z बार. फिर क्या रिलेशन होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं. नेक्स्ट इज यूलर्स फॉर्मूला. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है लेकिन हमको यहां यूज करना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट का काम करेगा. व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला? यूलर ने बोला कि एक्सपोनेंट जो होता है e to the power I theta can be expanded as cos theta plus I sin theta. ये सीरीज ओपन करते हैं इनकी, उससे आता है, ये एक्सपोनेंट है e, log base e जो आप बोलते हो ना, वो है ये. And what is e to the power minus I theta? In place of theta you put minus theta, so what is it? It is cos of minus theta plus I sin of minus theta. What is cos minus theta plus cos theta? What is sin minus theta? It is
minus, so very important it is e to the power I theta cos theta plus I sin theta, e to the power minus I theta cos theta minus I sin theta is called Euler's formula, most important. Next is important points on arguments. थीटा के लिए कुछ important points कि थीटा की वैल्यू कब होगी, कैसे होगी, कब नंबर कैसा होगा, तब किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, देखना समझना. फर्स्ट कंडीशन इट इज गिवन एज इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव रियल, कोई सिंपलेस्ट सिर्फ रियल नंबर हो, जैसे z इज इक्वल टू 3, इसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव रियल, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे कहां लाई करेगा, 1 2 3, दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट P एंड ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो दिस इज R, है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया कोइंसाइडिंग विद रियल एक्सिस. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन विद द रियल एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे, थीटा की वैल्यू कितनी, 0. So values of argument is 0. Second is negative real z. Z is negative real है, मतलब मान लो let it is -3 है. Where is the location of -3? 1 2 3. Here is this. Here is the point P. इस लाइन की थीटा कितनी है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से if you measure this angle is equal to pi 180 degree. So what is the argument? It is pi. Complex number is positive imaginary. Complex number समझ लीजिए, it is 4i. Positive imaginary है. What is the location? 1 2 3 4. This is the point P. ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा है, इसने पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से दिस एंगल इज 90 डिग्री, कितना, पाई बाय 2. सो व्हाट इज द आर्गुमेंट, पाई बाय 2. नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, negative imaginary, let z is the complex number -4i, 1 2 3 4. Here is the location P. What is this angle? This angle is complete this. ये पूरा घूमना पड़ेगा आपको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द एंगल इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव. तो एंटी क्लॉकवाइज में आप लोगे तो कितना आएगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2. व्हाट इज इट, टोटल 3 पाई बाय 2 बोलिए, या आप चाहे तो माइनस पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से, बट दिस इज करेक्ट, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, माइनस z कर देंगे अगर आप, तो उसके आर्गुमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा. Let our complex number is z is equal to 3 plus 4i, मान लो. What is minus z? It is -3 minus 4i. देखना, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, 1 2 3 1 2 3 4. दिस इज द लोकेशन 3, 4. दिस इज द लोकेशन, अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर रहा हूं मैं, ये रहा. What is minus z? -3 1 2 3 -4 1 2 3 4. This is the location, say it is P dash. This is the location of minus z. अब आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन किया, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन किया. पहले अगर इसका एंगल कितना था, थीटा था, तो अब उसमें कितना ऐड हो गया, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज पाई. इसका आर्गुमेंट माइनस z का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इट इज पाई प्लस थीटा. समझ में आ रहा है, या पाई प्लस थीटा बोले, या इधर से आप आ जाइए पाई दिस टोटल, और माइनस थीटा बोले, नेगेटिव साइड में भी आप ले सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा. सो दोनों को कंबाइंड कर दिया, इट इज थीटा प्लस माइनस पाई. You can write it as theta plus pi, and you can write it as minus pi minus minus plus theta. It is theta minus pi. दोनों को combined करके लिखा जा सकता है. What is the argument? Theta
प्लस माइनस पाई. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? इफ थीटा इज नेगेटिव एंड थीटा इज पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज when a complex number is multiplied by I, then what happened to its argument? Z is a complex number, x plus iy. What is multiplication of I of Z will give? It is ix plus I square y. What is I square? -1. ये इस फॉर्म में लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन. Z is 3 plus 4i. What is IZ? IZ कितना होगा? IZ will be 3i plus 4i square. I square is -1. -1 minus 4 plus 3i is your new complex number. Initially 1, 2, 3 plus 1, 2, 3, 4. The location of the complex number is somewhere here at point P. This is second time -4. 1, 2, 3, 4 and plus 3. 1, 2, 3. This is the new location of the complex number. यहां पे आ गया कितने पे? P dash. देखिए अगर आप इसको देखेंगे, if this is the original argument theta, तो उसमें ये एंगल कितना ऐड हो गया? पाई बाय 2 ऐड हो गया एंगल. So what is the new location? It is पाई बाय 2 plus थीटा. थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड. व्हाट इज थीटा? थीटा को ऐसे लिखता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, और थीटा इज रिटन एज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ आई जेड? इट इज नथिंग पाई बाय 2 प्लस थीटा. मैं क्या कर रहा हूं? मैं वेरीफाई करते जा रहा हूं रिजल्ट्स को, है ना, ताकि आपको याद रहे, समझते जाएं. नेक्स्ट इज माइनस ऑफ आई जेड. It is equal to what? It is argument of z minus pi by 2. Similar way में. Next is most important, argument of z to the power n. ध्यान से देखना, this is equal to n times argument of z. Memorize it. Again most important, argument of z1 into z2. It is nothing, argument of z1 plus argument of z2. Next is argument of z1 upon z2 is nothing, argument of z1 minus argument of z2. तीनों के ऊपर लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. Next relation is between argument of z and argument of z bar. देखिए z का आर्गुमेंट से z is a complex number 3 plus 4i. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. This is the location of z. What is z bar? Z bar will be 3 minus 4i. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. This is the location. Okay, this is P dash. This is the location of z. This is the location of z bar. Obviously, perpendicular is of length 4, base is length 3. So what is theta? Tan theta can be written as 4 by 3. Lengthwise theta is equal to tan inverse 4 by 3. Here also base is length 4, perpendicular is of length 4, base is of length 3. So obviously this angle भी ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा. अगर आप बोलते हैं z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट कितना है? थीटा है, तो z बार के लिए व्हाट इज द आर्गुमेंट? इट इज कैन बी रिटन एज सिंपलेस्ट माइनस थीटा बोल सकते हैं आप, या इस एंगल को निकालना पड़ेगा आपको, ये वाले एंगल को, है ना, मेजरमेंट वाइज दिस इज थीटा, सो दिस इज सिंपली 2 पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं. तो इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z बार इज व्हाट? माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा. You can write from here argument of z bar is equal to, this is what?
argument of 2 pi minus theta z. What is theta? What is theta? Theta is argument of z. So मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं argument of z bar is equal to 2 pi minus argument of z. Transfer it to the left hand side. It will gives argument of z plus argument of z bar is equal to 2 pi. या यहां पे देखेंगे z बार का आर्गुमेंट क्या है? माइनस थीटा. मीन्स व्हाट? आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z. ट्रांसफर इट. व्हाट इज इट? आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू कितना? 0 बोले या 2 पाई बोले या 4 पाई बोले या 6 पाई बोले, एक ही बात है. 2 पाई मतलब एक रोटेशन. एक रोटेशन जब आप लोगे तो कहां आ गए लौट करके? 2 पाई के बाद वही आ गए जहां स्टार्टिंग पे थे. तो व्हाट इज इट? वेरी इंपॉर्टेंट. आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 0. इंपॉर्टेंट का मार्क. या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई में भी लिख सकते हैं इसको. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीटा. क्या कंफ्यूजन होगा एक्चुअली में? इफ यू राइट tan थीटा इज इक्वल टू, it is say complex number is z is x plus iy, you will write it as tan theta is equal to y by x. मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z dash is another complex number, it is minus x and it is what? minus iy. इसके लिए what is tan theta? tan theta is equal to minus y upon minus x. ये कैंसिल हो गया. इसके लिए भी tan theta कितना है? y by x. But in real location wise z is equal to x plus iy. X is positive, y is also positive. Where is the location of the complex number? In first quadrant. Minus x somewhere here, minus y somewhere here. Where is the location? Location of the complex number is somewhere here. It is in which quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट. ये देखिए इन दोनों के कारण से ये एप्लीकेशन गलत हुआ ना. सो आपको इंडिविजुअली कंसीडर करना पड़ेगा. व्हाट इज द साइन ऑफ x, व्हाट इज द साइन ऑफ y. दूसरा एग्जांपल देखिए. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर x माइनस iy. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस x प्लस iy. व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस? फॉर्मूला डालोगे कितना? माइनस y अपॉन x. विच क्वाड्रेंट इट इज? x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव. कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में जाएगा. इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कहां जाएगी? माइनस एक्स एंड प्लस वाई समवेयर हियर इन सेकंड क्वाड्रेंट. जबकि इसका tan थीटा जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू y अपॉन माइनस एक्स. लेकिन मैथमेटिक्स वाइज तो दोनों सेम है, दोनों ही माइनस y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स है. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये फर्स्ट का कॉन्सिडेंस होगा थर्ड से, सेकंड का होगा फोर्थ से. उससे बचने के लिए क्या है? एक टेबल बनाया मैंने. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीटा. हाउ इट इज? x एंड y प्लस प्लस आर्गुमेंट इज z. थीटा लाइज बिटवीन 0 to pi by 2. दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. व्हेन x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, आर्गुमेंट इज pi minus theta. And theta lies in second quadrant, that is pi by 2 to pi. X and y both are negative. Argument is minus theta. Theta lies between pi to 3 pi by 2. That means third quadrant. And x is positive, y is negative. Argument is minus pi minus theta. Theta lies between 3 pi by 2 to 2 pi. That means fourth quadrant. So while considering this type of operation, you should consider the correct sign of x and y. Now the questions of type 6, that is standard form of complex numbers. First question number, it is root 3 plus I is equal to what? We have to convert it into standard form. If you compare it with x plus iy, so what is the value of x? It is root 3. What is the value of y? It is 1. Now check the sign. दोनों का साइन देखिए, प्लस प्लस है,
मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, एम्पलीट्यूड इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. व्हाट इज आर? आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज 2, right? So standard form of the complex number is r cos theta plus I sin theta, that is equal to, what is theta? Theta is tan inverse, or you can write tan theta is equal to y upon x. What is tan theta? Is 1 by root 3. Theta is which angle? 30 degree. 30 degree is what? Pi by 6. Your answer is r, that is 2 cos pi by 6 plus I sin of same angle pi by 6 is the answer. Question number 2, 3 and 4 of the same type. Fifth question number. The argument of the complex number minus 1 plus I root 3 is x is negative and y is positive. Which quadrant? ये आपको मैन्युअली निकालना चाहिए. बेस्ट मेथड है. x is negative, y is positive. Which quadrant? Second quadrant. So what is r? It is so easy. Under root of minus 1 square plus root 3 square, that is 2. And what is tan theta? Tan theta will be equal to y by x, that is रूट 3 माइनस के साइन के साथ. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल के लिए tan थीटा इज माइनस रूट 3 होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू विल, बेस्ट मेथड, चेक द कर्व ऑफ tan थीटा. tan थीटा का कर्व ऐसे चलता है. व्हाट इज रूट 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? कितने डिग्री पर मिलता है? 60 डिग्री पर मिलता है. व्हाट इज tan 60? इट इज रूट 3. क्लियर? तो यहां से 90 डिग्री से 60 डिग्री आगे लेंगे आप, है ना? यहां से पीछे, यहां पे 90 डिग्री से इट इज, ये डिफरेंस कितना है? 30. 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 डिग्री. 120 डिग्री पर आपको निश्चित रूप से कितनी वैल्यू मिलेगी? माइनस रूट 3. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज 120 डिग्री. 120 डिग्री मींस पाई बाय 3 इंटू 2, 60 डिग्री इंटू 2. सो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है व्हाट इज द आर्गुमेंट? आर्गुमेंट इज 120 डिग्री. सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. कॉम्प्लेक्स नंबर minus 1 plus root minus 3, it can be written as root 3i. थीटा आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. इट इज व्हाट? root 3 by minus x is negative, y is positive. Second quadrant, theta is same angle 120 degree. Seventh question number, 1 minus I upon 1 plus I, ये कितना होता है? Minus I. Its real part is 0, imaginary part is 1. X is 0, imaginary part is, it is minus 1. So it can be written as r is equal to ax square plus y square, that is 1. Tan theta is equal to y upon x. Theta is 90 degree. Infinity आएगा तो. What is the complex number? It is equal to r cos theta plus I sin theta. This is the answer. Cos theta minus sin theta. Okay, it is minus 1. नेगेटिव साइड में जा रहा है. सो tan थीटा का ग्राफ जब आप लोगे तो व्हाट इज नेगेटिव? y इज नेगेटिव. y इज नेगेटिव एंड x इज पॉजिटिव. विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. इज इट? इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. यू कैन से यहां पर आ रहा है नेगेटिव में. सो इट इज पाई बाय 2. यू शुड टेक इट 3 पाई बाय 2. व्हाट इज थीटा? थीटा इज 3 पाई बाय 2. ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं उसको पाई प्लस पाई बाय 2. सो कॉस पाई प्लस थीटा इज कॉस पाई बाय 2 एंड साइन इज नेगेटिव माइनस आई साइन ऑफ पाई बाय 2. यू कैन रिवर्स चेक. एक शॉर्टकट बताता हूं आपको मैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप रिवर्स चेक कर सकते हो. कैसे? योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? इट इज माइनस आई. आप स्टैंडर्ड फॉर्म को खोल दो.
cos pi by 2, what is cos pi by 2? 0 minus I sin pi by 2, sin pi by 2 is 1, क्या आया? माइनस आई. दिस इज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आप उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस आई. दो मेथड है. फर्स्ट, यू शुड सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करिए. ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है. हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2. जैसे लॉग रूल होता था ना, उसी टाइप से इसको मेमोराइज कर सकते हैं. सो ये Z1 है, ये Z2 है. इस कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3i माइनस करना एम्पलीट्यूड ऑफ रूट 3 प्लस आई. ओके, इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? इट इज tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1. रूट 3 अपॉन 1 दोनों पॉजिटिव हैं. कितना होगा? 60 डिग्री रूट 3 की वैल्यू. एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन रूट 3, ये भी कितना होगा? tan इनवर्स. दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव मींस 30 डिग्री. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 30 डिग्री. 30 डिग्री मींस पाई बाय 6 is correct answer. Next question is question number 14. 3 plus 2i sin theta divided by 1 minus 2i sin theta will be purely imaginary. Then what is the value of theta? First you should simplify it. क्या करना चाहिए? Multiply numerator and denominator by the conjugate of denominator. ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं. 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 जा 6i साइन थीटा प्लस दिस इज 1 2i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा 2i sin थीटा 2 2 जा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b इज 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा. रियल पार्ट आई स्क्वायर इज -1, तो मैं इसको सेपरेट करूंगा. 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको सेपरेट करूंगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. इमेजिनरी पार्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए. 2 प्लस 6 8i sin theta and denominator should be separated as 1 plus 4 sin square theta. ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है. If it is purely imaginary means its real part equal to 0. This is equal to 0. 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta equal to 0. This whole into 0 is 0. 3 minus 4 sin square theta equal to 0. Transfer it to the right hand side, or sin square theta can be written as 3 by 4. What is sin square theta? ये रूट 3 by 2 का स्क्वायर है ना. रूट 3 by 2 मतलब कितनी वैल्यू होती है साइन की? बोलो 60 डिग्री. इट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 3. और ट्रिग्नोमेट्री बोलती है जनरल वैल्यू जब. Now trigonometry states when sin square theta is equal to sin square alpha, what is the general value? General value is theta is equal to n pi plus minus pi by 3. This is the answer. 15th, the connection with 14th, same question number. If it is real, it is purely real, तो imaginary part क्या करो इसका? 0. means 8 sin theta divided by 1 plus 4 sin square theta will be equal to 0. This multiplied by 0 is 0. 8 sin theta is 0. 8 is not 0. Definitely sin theta equal to 0. What is theta? Theta is n pi. The answer. Next question is question number 20th. If
z is a complex number r e to the power I theta, then what is the modulus of e to the power I z? ये कितना होगा? देखिए z क्या है एक्चुअली में, z is r. What is e to the power I theta? It is cos theta plus I sin theta, Euler's theorem. Okay. Now here I can put, that is we have to find out the modulus of e to the power I z. Z की जगह रखिए r cos theta plus I sin theta. Agreed? Okay. I can write e to the power multiply I into r cos theta plus IR into this is I square r sin theta. It is e to the power IR cos theta and I square is minus 1. It is minus r sin theta. In power there is subtraction of two terms, can be written as e to the power IR cos theta into e to the power माइनस आर साइन थीटा. लिख सकता हूं मैं इसको, मैं बाहर लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा, और ये आपके पास में क्या है, ये आई थीटा के फॉर्मेट में है ये. सो यू कैन ओपन इट, इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. यू कैन राइट इट इन दिस वे. तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट हुआ. What is it? If you compare it with the standard complex number, तो z is equal to r cos theta plus I sin theta. What is r? Modulus. So what is the modulus of e to the power iz? It is nothing, e to the power minus r sin theta. Beta answer is correct. Next is type 7. Euler's theorem. First question number. Real part of e to the power I theta is. जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को एक्सपेंड किया था, इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करिए e to the power. What is e to the power I theta? It is cos theta plus I sin theta. Agreed? Euler's theorem can be written as, इसको ब्रेक करिए, e to the power cos theta into e to the power I sin theta में ब्रेक कर दीजिए. e to the power cos theta तो रियल पार्ट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, लीव इट. e to the power I sin theta, इसको आप वैसे ही एक्सपेंड करिए जैसे आप e to the power I theta को एक्सपेंड करते हो. हाउ इट इज, cos theta plus I sin theta. Agreed? Is it clear? Clear or not? Yes. Multiply करिए, e to the power cos theta into cos of sin theta plus I into e to the power cos theta into sin of sin theta. What is it? This is complex number. This is its real part, this is its imaginary part. What is your answer? e to the power cos theta cos of sin theta. अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता what is the imaginary part of this complex number, answer is e to the power cos theta sin of sin theta.